Today we are going to start a new topic, that is the stock market. Basics of stock market. आज जो हम इसमें देखने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद you don't need to go anywhere else. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We will be covering all the concepts over here only. So if you are a person who is starting to invest in stock market, who wants to learn, how it works, so today is the video. If you watch this video from the start till the end, maximum concepts would be clear. Means how you should be investing in the stock market, why you should be investing in stock market, within the stock market where you should be investing, right? And when you should be investing. You will be getting the answers of all the questions, and you will know, how to start investments in stock market. So many of your questions would be answered in this video. So today we are going to discuss and we are going to start with why to invest in stock market, what are the instruments of stock market, investment tips, how to invest, when to invest, where to invest, all these things will be covered. How to start means हम start कैसे करें, कहाँ से start करें, what are the trade cycles, होता क्या है stock market पे, means when I buy and sell, what happens exactly, how the shares come in my account and they're credited, or the funds are deducted from my account, how it works basically, types of trades and what are the types of orders, means मैं क्या क्या कर सकता हूँ stock market में, what are the instruments and what are the types of orders I can do in the stock market. So it's going to be an interesting video. I want you to just watch till the end. So let's start from a concept. What exactly is stock market? You might have heard Nifty, Sensex, what exactly is stock market? How it works, right? And what are the ways I can invest my money or I can get good returns from the stock market? See, होता क्या है? अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, इफ आई एम अ बिजनेसमैन, राइट, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आई नीड मनी, आई डू हैव एन आइडिया, बट पैसा नहीं है मेरे पास आइडिया है बट पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने को. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन आइदर टेक अ लोन और सम मनी फ्रॉम माय फादर, माय मदर, मैं अपने मम्मी पापा से ले सकता हूँ, अपने रिलेटिव्स से ले सकता हूँ, फ्रेंड्स, राइट. फर्स्ट वे. Second way of doing things would be I can go to a bank, I can take loan from a bank. मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, right? But बैंक मुझे 14% में लोन देगा. The interest bank would charge is around 14%. Now these are two ways. These are personal ways. मेरे छोटे लेवल पे. और else अब मैं क्या कर सकता हूँ? I can go to public. मैं आम जनता के पास जा सकता हूँ. But I can say हाथ जोड़ के सभी को कि सब मुझे एक एक रुपया दे दो, या 100 रुपी और 10 रुपी ईच आप मुझे दे दो, मैं बिजनेस खड़ा करूंगा एंड सबको उसके उनके पैसे वापस करूंगा. दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. व्हेन अ बिजनेस गोज टू पब्लिक टू रेज मनी फॉर देयर एक्सपेंशन, तो उसमें बिजनेस का क्या फायदा? बिजनेस इज गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ मनी, राइट, एंड दे कैन यूज द मनी फॉर देयर एक्सपेंशन, राइट. तो उसमें आपका क्या बेनिफिट, मींस जिन लोगों ने पैसे लगाए उनका क्या बेनिफिट? नंबर वन बेनिफिट इज दैट दे विल बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. वो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे. दिस इज शेयर, दिस इज व्हाट अ शेयर होल्डिंग मीन्स. अब वो लोग शेयर होल्डर हैं. नाउ इफ यू हैड इन्वेस्टेड, इफ यू हैड परचेज वन शेयर, यू आर 1% शेयर होल्डर ऑफ माई कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50% शेयर खरीद लिए मेरी कंपनी के, तो आप 50% ओनर बन गए. आई एवर गेटिंग द पॉइंट. बदले में आपको क्या मिलेगा? यू हैड इन्वेस्टेड योर मनी इन माई बिजनेस. इफ माई बिजनेस ग्रोज टुमारो, you will get your profits. The same thing happens in Shark Tank India. They are selling, they are taking the money, and on behalf, they are selling their company, ownership of the company. That is private equity, and stock market is public equity. When a business goes to public to raise money, right? And then, that can be sold in the market. That is a different concept, primary market and secondary market. But I hope now you have a glimpse in your mind why stock markets are there. Stock markets are there so that businesses can raise money from the entire country, right? बिजनेस का फायदा क्या है? इट विल एक्सपैंड. आपका फायदा क्या है? आपने पैसे मुझे दिए, इट विल ग्रो.
एंड कल को आप अपने पैसे को वापस ले सकते हो. यू कैन टेक योर मनी बैक with some extra profit in that, right? The stock market is a marketplace where investors buy and sell shares publicly traded companies, right? जहां पे आप लोग किसी बिजनेस में पैसा लगा सकते हो. You can invest in a business and you can become a shareholder in a business. I hope this is clear to everybody. Now, one interesting fact on this, you might have heard Mr. Steve Jobs, he was fired from his own company. उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था उस टाइम में. मीन्स एक कंपनी जो उन्होंने ही स्टार्ट की, एप्पल, एंड उसी से उनको बाहर निकाल दिया. वाई सो? बिकॉज उनके पास शेयर होल्डिंग ही नहीं रही थी, राइट? मीन्स आई स्टार्टेड अ कंपनी, आई हैड 100% शेयर होल्डिंग. मैं वो देता गया एंड at the end I had around less than 50%, 40%, it could be 30%, 20%. 50% से नीचे गई तो मैं अपनी ही कंपनी दे चुका. Now if someone is having more than 50% shareholding, he will become the new owner of the company. As simple as that. I hope this is clear to everybody. Okay. Now why I should invest my money in stock market? सर, आपको एक क्वेश्चन आता होगा कई बार, बैंक में भी तो पैसे पड़े ही है ना सर, वट हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाएं? वाई वी शुड टेक द रिस्क? वाई वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी इन स्टॉक मार्केट? The answer to that would be beating the inflation. Guys, this is a very important concept and I want you to focus over here. This concept plays a very important role in terms of, you know, in terms of loans, in terms of investments as well. Let me give you a small mathematical example for this. Right now, just give me a moment. All right, guys. Now, for example, you have your money in a bank, right? Bank saving account. How much return you get, how much interest you get in the bank saving account? It's 2%. 2% is the return you get. So, for example, you have invested 1 lakh rupee in the bank, 2% lagega, so it will become around 1 lakh 2,000, right? Now, guys, always remember one thing, always remember one thing in your mind, that there is a concept called inflation. जो इंडिया में around, it's around 6%, I would say. It could be around 7% as well. There are multiple types of inflations, but let's take it's around 6%. आपने सुना होगा your grandfather's time, you know, your dadaji, your grandfather, you know, and your father, right? He could have purchased uh, 1 kg of rice around 50 rupee, just for an example. Today, that 1 kg of rice is costing 100 rupee. It means हो क्या रहा है? सामान तो हम उतना ही खरीद रहे हैं. We are buying the same amount of stuff. But करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, that is getting decreased, guys. It is called as time value of money. तो जब जब आपके पास पैसे होते हैं, the cash, the currency you are holding, right? Its value erodes with time. This is called as time value of money. It is very important concept in finance. TVM. Now, why it erodes? Because the purchasing power goes down. हम खरीद 1 किलो ही चावल रहे हैं. We are buying 1 kg of rice only. But see, earlier during my grandfather days, he used to pay 10 rupee. Then my father 50 rupee. Today I am paying 100, and maybe my children, they might have to pay, you know, 200 rupee per kg of rice. It means the value of money is getting eroded with the passage of time. And being a finance student, आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए माइंड में, वेन एवर एंड वेयर एवर यू आर पार्किंग योर मनी. आप अपने पैसे कहीं भी रख रहे हो, the returns you should be getting should always be more than 6% or always be more than the inflation rate. For example, inflation rate right now in India is 6%, so आपके return 6% से ज़्यादा ही होने चाहिए. Otherwise, in reality, for example, a bank account में your money is growing. It is growing absolutely, but by the rate of 2%. आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, but in reality, real, you know, returns you are getting is 2% minus 6% is minus 4%. It means you are at the loss of 4%. आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, it is getting eroded at the rate of 4% every year.
एंड आपको मैं एक और फैक्ट यहाँ देना चाहता हूँ, आफ्टर एवरी 7 years, इट इज अ साइकिल ऑफ 7 years, तब द परचेजिंग पावर ऑफ मनी बिकम्स हाफ। जो चीज आज आप 100 रुपीज की खरीद सकते हैं, द थिंग, द कमोडिटीज यू कैन बाय टुडे एट द रेट ऑफ 100 रुपी, this for the same commodity tomorrow after 7 years, you have to pay double the amount. For example, if you're going to a restaurant near to your house, आप अपने घर के पास किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, if today, if your entire family is eating good quality food, maybe today you are paying 2000 rupee for the dinner party, but the same party will cost you 4000 after 7 years, means the money is getting eroded. खाना आप उतना ही खा रहे हो, क्वालिटी भी उतनी है, रेस्टोरेंट इज सेम, बट यू हैव टू पे द डबल अमाउंट ओवर हियर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो दैट इज वाई वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, आपको हमेशा देखना है कंट्री में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, एंड यू शुड बी गेटिंग मोर देन दिस एट लीस्ट. So this is why you should never keep your money in the bank account, because in bank your money is growing only at the rate of 2%. Generally, if I subtract it from inflation, you are getting a loss of 4%. So your money is getting eroded by 4% every year, guys. I hope this is clear to everybody. So sir, should we go for FD or RD? Okay, FDs and RDs. How much return you get from here? Around 6% again. So in reality, if I see the inflation rate, so it's 6%, and in FDs and RD, the returns you're getting is 6%. So 6 minus 6. In reality, your money is neither growing, not eroding. It's 0%. तो ना आपके पैसे बढ़ रहे हैं इन रियलिटी, ना आपके पैसे घट रहे हैं. इट इज अराउंड 0% ओनली. So that is the reason. Inflation is the reason that you should invest your money in all the platforms wherever you're getting more returns, more than inflation. It could be mutual funds. Mutual funds में आपको आराम से 14% रिटर्न मिलता है. Easily, you will get 14% return, right? So if I subtract 14 minus 6, आराम से आपका पैसा 8% के रेट में बढ़ेगा इन रियलिटी. वैसे तो इट्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 14%, but overall if I say, it will grow by the rate of, in reality it will grow by the rate of 8%. I hope this is clear to everybody. Equity, stocks. If I invest my money in stocks, it will grow by the rate of 20%. At least it can be more than that. तो यहाँ पे you are getting 12% return. Your money is really growing at the rate of 12% if I include this inflation over here as well. I hope this is clear to everybody. Similarly, if you invest in other platforms, in other instruments, you will be getting more than inflation. So this is the reason कि हमें पैसे स्टॉक मार्केट में क्यों लगाने चाहिए. Why we should invest our money in stock market. I hope this is clear to everybody. So that our money really grows, not just at the rate of 2%, but more than inflation rate. Right now, this is the only way of creating the wealth, guys. अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, if you really want to grow your money, you want to create wealth, you need to invest your money in stock market. You should not keep your money only in bank at the rate of 2%. You should invest your money at least more than that. So if you're getting more than 20% return, but just imagine, guys, you are getting 100% returns in stock market. You easily, sometimes if you have invested in good stocks, you may end up getting 100% return as well. Just imagine if you must had invest in 1 lakh rupee, 10 lakh rupee, 25 lakhs, or 1 crore rupee. Just imagine 100% of that. It would be immense amount of wealth you can generate from the stock market. This is what I want to say. You just focus on investing more you will invest, more you will get returns out of that, because compounding takes place. So try to park your money in stock market for a long period of time. Means it should be 5 years, 7 years, 10 years, 15, 20, or more than that. Longer the time, higher the amount you have invested, more money you can get as your returns. So it is important for the wealth creation as well, राइट. यू गेट पैसिव इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स. गाइस, स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, तो कंपनीज, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो,
that you are इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर को देते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ बोनस। तो आपका ऐसा हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली आपको डिविडेंड्स आए, ईयरली डिविडेंड आए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड इन्वेस्टेड इन सम गुड कंपनीज, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, तो आपको डिविडेंड्स देंगे। दिस इज अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल गेन। स्टॉक मार्केट से जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज डिफरेंट। डिविडेंड सिर्फ आपको टोकन अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनीज देती है, एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट डायरेक्टली, आपके अकाउंट में खुद आ जाएगा वो। जस्ट इमेजिन, जस्ट लाइक अ पॉकेट मनी गाइस, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी यू कैन अर्न फ्रॉम द डिविडेंड्स, राइट? सो इट इज अ गुड वे ऑफ पैसिव इनकम एज वेल। आपने अपने स्टॉक्स नहीं बेचे, इट इज समथिंग विच यू विल डायरेक्टली गेट इन योर अकाउंट, बैंक अकाउंट, अ टोकन अमाउंट ऑफ मनी। कई बार दिवाली में मिल जाता है, कई बार क्वार्टरली मिल जाता है, कई बार ईयरली मिल जाता है। सो दीज आर द डिविडेंड्स, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। तो डाइवर्सिफिकेशन, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इसलिए भी जरूरी है, देयर इज अ सेइंग दैट you should invest your money in multiple platforms. For example, सारा का सारा पैसा बैंक में ही क्यों रखे हम लोग, right? One more thing I would like to give you over here, the best example, the recent example was Yes Bank. Guys, it's a case study. लोगों ने अपना, Yes Bank was a private bank and it was a good bank, उस टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा था। What happened guys, this bank collapsed, crashed. इन्होंने क्या किया, डिपॉजिटर्स का पैसा तो लिया था, बट उसी डिपॉजिटर्स के पैसे को रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट किया। अब बेचारे लोगों ने अपने हार्ड वर्क से पैसा लगाया। जस्ट इमेजिन अ फादर वर्किंग हार्ड इन हिज जॉब एंड उन्होंने सारा पैसा यस बैंक में रखा है, एंड टुमारो यस बैंक कोलैप्स, देन व्हाट वुड हैपन? जिन लोगों के पैसे थे वो उसी में ही फंस गए। दे कुडंट इवन विथड्रॉ देयर मनी बैक। लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग जिसमें रखी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी लाइफ जॉब की एंड आई मेड, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बीइंग मिडिल क्लास, आई मेड 20 लाख रुपी, और मैंने सारा का सारा पैसा अपने बैंक में रखा है। अगर बैंक ही कोलैप्स हो जाए कल को, तो दिस मनी विल स्टक। अब ऐसा हुआ इन रियलिटी, मैनी पीपल दे इन्वेस्ट, दे हैड डिपॉजिटेड देयर मनी इन यस बैंक इन देयर सेविंग अकाउंट ओनली, जैसे हम सब रखते हैं, और यस बैंक ही कोलैप्स हो गया। द मनी गॉट स्टक। यस बैंक ने आज भी वो पैसे वापस नहीं दिए। The case is still in the Supreme Court. Many people had their families to take care of. Their parents were in hospital. They had to pay college fee, school fee of their children. Just imagine the situation. Instead, अगर किसी ने ये 20 लाख डिवाइड करके थोड़ा स्टॉक्स में लगाया होता, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा एफडीज में, अलग अलग जगह लगाया होता, तो एटलीस्ट पूरा का पूरा पैसा नहीं डूबता। कुछ पैसा हम स्टॉक से निकाल लेते, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लेते। सो नेवर एवर कीप योर मनी एट सिंगल प्लेस गाइस। इट इज रेलिवेंट टू द स्टॉक मार्केट एज वेल। हमें कभी पूरा का पूरा पैसा स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा पैसा सारी जगह लगाना चाहिए। सो यस, वी शुड नेवर कीप आवर मनी इन द बैंक्स, नॉट 100% एटलीस्ट। एक और आइडिया मैं आपको देता हूँ। ऑलवेज हैव टू बैंक अकाउंट्स। वन बैंक अकाउंट शुड बी इन प्राइवेट बैंक, another bank account in PSU bank as well. PSU means semi-government banks like SBI, like PNB. थोड़ा थोड़ा पैसा करके रखो, थोड़ा यस बैंक में रख लो, एक्सिस बैंक में रख लो, या ऐसे कोई भी प्राइवेट बैंक है उसमें रख लो, और थोड़ा पैसा एसबीआई में रखो। हमेशा दो अकाउंट रखो, so that even if something happens to one bank account or one bank, your money is, your partial money is saved at least। आपको कुछ पैसा तो बच जाए कम से कम। So again, it's an advice to all of you that always have two bank accounts, guys, and keep your money in both the bank's account. I hope this is clear to everybody. This is called as diversification. Diversification is very important. Means you should never keep your entire money at single place. Try to keep your money, some money at one place, some money another place. थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग जगह रखो. It's more advisable, right? Now, opportunity to participate in the growth of the economy. Now, what does it means? Basically, guys, अगर इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया विल ग्रो बिकॉज ऑफ द बिजनेसेस, एंड बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उस बिजनेस में, their money will also grow. Many years back when Reliance was just founded, right? तो जिन लोगों ने रिलायंस के शेयर्स लिए थे, इट रियली ग्रीव, राइट? बहुत साल पहले एमआरएफ के शेयर प्राइस बहुत सस्ते थे, 1000 10,000 रुपए में जिन्होंने वो प्राइस खरीदा, आज एक एमआरएफ
शेयर की कीमत इज अराउंड 1 लाख रुपी वन शेयर। तो जब देश ग्रो करेगा, लोग भी ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं, एंड देश हमेशा बिजनेसेस से ही ग्रो करता है। So we are having an opportunity to participate in the growth of the economy, and India is a growing economy, right? By 2047, our prime minister had, announced that we are going to hit the target of they had fixed a target that we are going to be a developed nation. So if India is growing, businesses will grow, and the people who had invested in the businesses, their money will also grow. I hope this is clear to everybody. Now liquidity, guys, stock markets brings good amount of liquidity. आप एफडी में पैसा लगाते हैं, यू मे हैव अ लॉक इन पीरियड, इट कुड बी 3 months, 6 months, 1 year and many years like that. But in stock market, if you want to sell your money, if you want to redeem your money, definitely पहले ऐसा होता था यार, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया कैसे निकालेंगे, बट टुडे इट इज T1 साइकिल। आज आपने पैसे विड्रॉ किए, कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जस्ट वन डे में, इट्स मैटर ऑफ वन डे। So if you need money, immediate money, liquid money, right, you can immediately get it. तो आप अपने stocks बेच दो और अपना पैसा अपने पास बुला लो. So this is how stock market is very liquid now. पुराने टाइम में होता था, it used to take 14 days, 7 days, the cycles are very long. But now the cycle is not long, it is just one day cycle. तो आज आपने stocks बेचे, कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. It's that fast now. Better than real estate. अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो, it becomes very difficult, right? It takes time to find a good buyer. It takes time for all the government transactions, all the legalities to overcome all those things. It takes a lot of time. But in stocks, it's just a matter of one click, and you can redeem all your investments. Now, guys, this is very important. In stock market, how can I make money? हम stock market में कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, right? So सबसे पहले तो stocks. We can buy the stocks of the companies. स्टॉक मार्केट में हम कितना रिटर्न, how much return can I generate from stocks, from the shares? Guys, it is around 12 to 20% on an average. मतलब इतना तो मिल ही जाता है. If you are putting your investments for quite a long term, अगर लंबे टाइम तक आप पैसा रखोगे स्टॉक मार्केट में, इतना your money, you will be generating this much amount of wealth. Many of you will be asking, sir पैसा डूब गया तो? Guys, it is my experience. I'm investing in stock market for last since 2012, I would say. तब जेरोदा वगैरह कुछ नहीं आया था. We used to trade using phone calls. हम phones में ये सब करते थे. जो उस टाइम में बुरी कंपनीज भी थी, those companies also gave profit after 5-10 years. तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए. We should invest. We should start investing at least. बुरी कंपनीज भी इतना रिटर्न दे ही जाती हैं. And if you are lucky enough, if you do high research, equity research courses, हमने equity research के कोर्स डाले हैं इसमें, if you find a good company, if you are able to trace down good companies, you can make 100, 200 or maybe 500% returns as well over here. Means depending upon the companies, right? But इतना तो हो ही जाता है. हाँ, there are few cases where companies can go bankrupt. Definitely Kingfisher was there. उतना आपको थोड़ा न्यूज के साथ इन टच रहना पड़ेगा. If something like that is happening, immediately withdraw the money. वहां से पैसे एकदम से निकाल लो. Secondly, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो definitely आपको न्यूज से पता लग जाता है. Thirdly, there are many government institutes like SEBI है, आपको पता लग जाएगा. They put a bracket. वो उसमें सीलिंग लगा देते हैं ताकि शॉर्ट सेलिंग रुक जाए. So it's good कि you should start as early as possible. Now coming to mutual funds. Guys, if you don't have any knowledge of stocks, आपने इक्विटी रिसर्च के कोर्सेज भी नहीं किए हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी टाइम ऑफ कौन से जगह पैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं, आप म्यूचुअल फंड ले लो. म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा होता है, एक तो जिनको नॉलेज कम है स्टॉक्स की, फाइनेंस की, और जो टाइम भी इतना नहीं लगा सकते सीखने में, बिकॉज फाइनेंस टेक्स गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंस टू लर्न. ठीक है, उनके पास टाइम भी नहीं है सीखने का. तीसरा, दे डोंट वांट टू लर्न एज वेल. सो स्टिल यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में कम से कम आपका पैसा जीरो तो नहीं होता है. दैट इज वाई इट इज लो टू मीडियम रिस्क. स्टॉक्स में रिस्क होता है. मींस इफ यू एंड अप इन्वेस्टिंग इन अ रॉन्ग कंपनी, यस, देयर कुड बी अ चांस. इट्स अ वेरी रेयर चांस एज सच, बट यस, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है. इट कैन बी जीरो. दिस इज अ डिफरेंस. अगर हम बैंक में पैसा लगाते हैं, बैंक में आपका पैसा कभी जीरो नहीं होगा. इट विल नेवर बी जीरो, राइट? चाहे एफडी है, चाहे सेविंग अकाउंट है, बट स्टॉक मार्केट में यस, योर मनी कैन बी जीरो.
आपकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी खत्म हो सकती है। म्यूचुअल फंड में दे आर वेरी लेस चांसेस। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, डोंट लर्न एनीथिंग, डोंट यूज योर ब्रेन, सीधे कोई भी म्यूचुअल फंड, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड देखो। वी हैव अ सीरीज ऑन म्यूचुअल फंड रिसर्च एज वेल। एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढो, उसमें पैसा लगा दो, यू विल इजिली मेक 15 to 18% रिटर्न। 10% 12%, 15%, इफ यू आर लकी इनफ यू मे टच 25-30% एज वेल, पर इतना हो जाता है। म्यूचुअल फंड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल फॉर दोज जो हु डोंट हैव द टाइम, जिनके पास टाइम नहीं है, who have money but time नहीं है, who have money but they don't have the competence. It could be students from engineering background, finance arts background, or maybe people who are not in that age, जिनकी एज भी ज्यादा नहीं है कि वो सीख पाए टेक्नोलॉजी, जिनकी अच्छी नहीं है, वो आर नॉट गुड विद द टेक्नोलॉजी, दे शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इट्स गुड, म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। ईटीएफ्स, ये ईटीएफ क्या है सर? These are just like mutual funds, exchange traded funds, right? ये स्टॉक्स की तरह होते हैं बट इसमें रिस्क कम होता है, फर्स्टली। सेकेंडली, दीज आर द फंड्स जो इंडेक्स के ऊपर चलते हैं या गोल्ड के ऊपर चलते हैं। मैं गोइंग टू सी इट समटाइम्स इन द नेक्स्ट कमिंग पीपीटीज। बट ईटीएफ्स को आप ऐसा समझो, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट? ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं बट जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इनको आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कम्स विद स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड, कम्स विद स्पेसिफिक लोड्स, एग्जिट लोड। आप कुछ टाइम तक उसको पैसा लॉक करके रखना पड़ता है। बट ईटीएफ में आप पैसा सुबह लगाया शाम को निकाल लिया, वैसे कर सकते हैं। इट इज जस्ट दीज आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स बट कैन बी ट्रेडेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे भी यू विल गेट अराउंड 12%, इसमें मैक्स टू मैक्स यू विल गेट 12% रिटर्न। जैसे गोल्ड बीज, इट्स अ गुड, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, दीज आर फ्यू ईटीएफ्स जो इंटरनेट जो आपको उसमें मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट पे। हम उसमें आपको आपको आई विल बी शोइंग दिस इन द प्रैक्टिकल्स एज वेल। सो ईटीएफ्स कमोडिटी से भी लिंक होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बीज इज द एग्जांपल। सो let me show you over here, guys. So if I use, this is the chart for the Reliance gold bees. So this is the ETF, guys. ये गोल्ड के ऊपर चलता है इसका प्राइस, द प्राइस गोज विद द गोल्ड प्राइजेस। अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? नाउ अगर आपके पास गोल्ड में पैसा लगाना, इफ यू डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन गोल्ड टुडे, द गोल्ड हैव टच्ड द बार ऑफ 80,000। 80,000 तो नहीं है लोगों के पास, बट यू हैव 70 रुपीज एटलीस्ट। सो दिस इज कॉस्टिंग यू 70 रुपीज, इन्वेस्ट ओवर हियर, बस दैट्स इट। You will be, by 1 year, you will easily end up making 10 to 12% return from this. So ETF is just like a fund, just like a stock traded in the stock market, but it is related, the movement is related to the commodity. It could be index fund as well. For example, Nifty Bees. Let me show you Nifty Bees. So this is ETF for the Nifty. जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। सो यू विल easily end up making 12% रिटर्न। गुड थिंग ये जीरो नहीं होता, इट विल नॉट बिकम जीरो, योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड। सो अगेन सेफ, इट्स क्वाइट सेफ एज कंपेयर टू स्टॉक्स। सो अभी तक हमने क्या सीखा? स्टॉक्स आर रिस्की, म्यूचुअल फंड्स आर लेस रिस्की, ईटीएफ्स आर फर्दर लेस रिस्की, लो टू मीडियम। बट जैसे जैसे रिस्क कम हो रहा है गाइस, आपके रिटर्न्स भी कम होते हैं, राइट? सो योर रिटर्न्स आर आल्सो गेटिंग डिक्रीज्ड। तो आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं, इट इज गुड रिटर्न। अगर आप जॉब नई नई स्टार्ट की है आपने, अभी नई, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जॉब, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ स्टॉक्स राइट नाउ, आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर दो, आप ईटीएफ से शुरू कर दो। यू विल यू विल मेक एटलीस्ट बेटर देन द बैंक्स। आप बैंक से ज्यादा अच्छा कमा ही लोगे, राइट? नाउ फ्यूचर ऑप्शंस, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। IPO, guys, we have a video on IPO in the list. IPOs again very safe. IPO में पैसा कमाना स्टॉक से ज्यादा आसान है। IPO की इक्विटी जो IPO रिसर्च है, that is also having just 4 or 5 steps and you're good to go. इक्विटी रिसर्च में बहुत दिमाग लगता है, सीरियसली। फ्यूचर ऑप्शंस में और ज्यादा दिमाग लगता है, IPO में बहुत कम दिमाग चाहिए, एंड वेरी लेस टाइम यू नीड टू इन्वेस्ट, एंड इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी। इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो पहली बार कंपनी लोगों के पास जाती है हाथ जोड़ के कि प्लीज हमें पैसा दे दो, और लोग उनको पैसा देते हैं। दिस इज IPO एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी, राइट? इट्स जस्ट लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ लॉटरी।
इफ यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ये वेरीज क्यों लिखा है? इट विल वेरी। आपने आईपीओ लिया, आपको इमीडिएटली यू कैन गेट 50% रिटर्न, इमीडिएटली 100% रिटर्न। मीन्स आज एक आईपीओ आपने आईपीओ में अप्लाई किया, मीन्स यू अप्लाइड इन एन आईपीओ, राइट, एंड यू गेट द लॉटरी। वो लॉटरी खुल गई अगर फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा, रैंडम बेसिस में मिलता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं आईपीओ में और उसमें से कुछ लोगों को आईपीओ मिलता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, आपने 100 रुपीज दिए थे उस आईपीओ में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। इमीडिएटली जो आपके बैंक में पैसे, अगर आप उस आईपीओ को बेच देते हैं, इफ यू रिडीम योर आईपीओ, यू मे एंड अप गेटिंग 200 रुपी। मीन्स इमीडिएटली एक ट्रांजेक्शन से आपने अपना पैसा डबल कर लिया। और मे बी यू मे गेट 50% रिटर्न, 20% रिटर्न, डिपेंडिंग। बट आईपीओ इज अ गुड वे। आईपीओ को आप यू कैन होल्ड दिस आईपीओ फॉर अ लॉन्ग रन एंड यू कैन इमीडिएटली ट्रेड ऑफ, इमीडिएटली रिडीम इट। आप इसको एकदम से निकाल भी सकते हो। सर ये आईपीओ को अप्लाई कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बट जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाओगे, वेन एवर यू ओपन योर डीमैट अकाउंट, वहां पे आईपीओ की ऑप्शन आती है। एवरी मंथ एटलीस्ट 4 और 5 आईपीओ आर इशूड। हर महीने 4 से 5 आईपीओ इशू होते हैं। हमें 4 से 5 आईपीओ में इन्वेस्ट ही नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना है एक या दो जो अच्छे आईपीओ हो। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमने अप्लाई किया आईपीओ में और आईपीओ हमें अलॉट हुआ, ऐसा हमेशा नहीं होता है। पर जस्ट इमेजिन गाइस, साल में आपको 4 आईपीओ भी लग गए, इफ यू गेट 4 आईपीओ इन 1 ईयर, यू मेड गुड प्रॉफिट ऑफ 50 to 100%। आपको एक ही आईपीओ साल में लग गया तो आप 50% प्रॉफिट बना गए, बेटर देन बैंक। सी गाइस, हम लोग तो बैंक से कॉम्पीट कर रहे हैं ना, वी आर कॉम्पीटिंग विद बैंक। कहाँ 2%, कहाँ 50%, राइट। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन को हमने बीट कर दिया। इन्फ्लेशन वॉज 6% एंड यू मेड 50% फ्रॉम एन आईपीओ। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो जस्ट इमेजिन, आप अप्लाई करो आईपीओ में, आईपीओ अगर अलॉट ना हो तो आपके पैसे वापिस आ जाते हैं। सो रिस्क इसमें ज्यादा नहीं है। फर्स्टली, अगर आप अच्छे आईपीओ में अप्लाई करते हो और साल में आपको 4 आईपीओ भी अलॉट हो गए, पूरे साल में 4 आईपीओ, यू विल मेक अराउंड 70% रिटर्न, 50 to 70। तो अगर आपने जॉब शुरू की है, आप थोड़ा पैसा रखो आईपीओ के लिए, 10 से 20 हजार अपने अकाउंट में अलग से रखा करो। जब जब अच्छा आईपीओ आए उसमें अप्लाई करो। यू मे एंड अप गेटिंग दिस आईपीओ, जस्ट लाइक अ लॉटरी, राइट। तो व्हाट आर बॉन्ड्स? सी गाइज, बॉन्ड्स होते हैं जब मैं आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पैसा लेता हूँ कि गाइस मुझे अब थोड़ा पैसा उधार दोगे, सो यू आर सेइंग ओके सर, वी ट्रस्ट यू बिकॉज आई एम योर टीचर, राइट। यू ट्रस्ट, आई हैव अ गुड ट्रस्ट फैक्टर। बट इन रिटर्न आई एम गिविंग यू a piece of paper. In this piece of paper I'm writing, okay, I Pranay Vyas, you give me 100 रुपी today, I will return your money back after 1 year. बट मैं 100 नहीं वापस करूंगा, आपको 120 वापस करूंगा। दिस इज ए बॉन्ड, मीन्स आई एम गिविंग अ प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस, प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं मैं आपको। दिस इज अ बॉन्ड एंड डिवेंचर बेसिकली। बट यहाँ पे यू कैन सी गाइज, रिस्क इज वेरी लो बिकॉज इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। आप इस पीस ऑफ पेपर को यू कैन होल्ड मी, माई कॉलर, कि सर आपने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिसरी नोट है ना। सो आप मुझे पकड़ सकते हो कि सर आपने प्रॉमिस दिया है, रिटर्न में आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। सो इसमें आपके पैसे डूबते नहीं है, मनी विल नॉट गेट वेस्टेड ओवर हियर। बट सी, एज आई टोल्ड यू ना, इफ रिस्क इज लेस, रिटर्न्स आर लेस, 6 to 8%। तो 6 से 8% रिटर्न मिलेगा, जस्ट अराउंड एफ टी एन आर डी एज वेल, उसी के आसपास आपको रिटर्न मिलता है। तो यू शुड आस्क, तो सर हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए बॉन्ड्स में? यस, यू शुड इन्वेस्ट, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, बट नॉट 100% ऑफ योर मनी। थोड़ा पैसा बॉन्ड्स में भी लगा दो, राइट। रिट्स क्या है, आई एम जस्ट कमिंग टू दिस एज वेल, एंड बिफोर दिस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सो गोल्ड ईटीएफ मैंने आपको बता दिया है इन द ईटीएफ सेक्शन, दैट वाज गोल्ड बीज। सो यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड बीज। 70 रुपी का था, इट वाज अराउंड 72 रुपी। कहाँ 80,000 क्रॉस कर गया है गोल्ड, एंड कहाँ 72 रुपी। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड यू डोंट हैव मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स। यू विल मेक 10 to 12% रिटर्न्स इजिली। Now, sovereign gold bond, एक bond थे, these are the bonds which are issued by the government, by RBI. RBI नहीं चाहता है कि आप लोग गोल्ड खरीदो। RBI, because the thing was that we were being Indians, we buy a lot of gold. गोल्ड खरीदने के लिए we import a lot of gold, तो हमारे imports बढ़ते हैं उसमें, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट उसमें इंक्रीज होता है, राइट। गवर्नमेंट डजंट लाइक दिस थिंग। सो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स यू, गवर्नमेंट वांट्स यू टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स।
यस एब्सोल्युटली यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलता है? पहला बेनिफिट, आपने फॉर एग्जांपल 80,000 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, राइट? इट इज जस्ट लाइक गोल्ड, रियल गोल्ड, राइट? नाउ आपने 80,000 का गोल्ड खरीदा, उस गोल्ड की वैल्यू अगले साल अगर 90,000 हो गई, राइट, तो 10,000 का प्रॉफिट है। तो एक तो वो प्रॉफिट आपको मिलेगा इसमें, ऑलराइट। ऊपर से जो आपने 80,000 यहां इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर अराउंड 2% रिटर्न भी मिलता है, 2% इंटरेस्ट ऑन दैट। मतलब गोल्ड का गेन, मार्केट गेन ऑफ द गोल्ड, सेकंड इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी यू इन्वेस्टेड, यू गेटिंग टू थिंग्स ओवर हियर। इट्स गुड एज सच। थोड़ा पैसा यहाँ लगाना चाहिए। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे कीप्स वेरिंग, मींस गवर्नमेंट उसको फ्लक्चुएट करती है, आपको देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर द गोल्ड का मार्केट प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। Apart from that, you will get some interest on that. So you're getting two benefits. But in this, you are getting a piece of paper. You're not getting real gold. आपको एक पीस ऑफ पेपर में गवर्नमेंट लिख के देगी कि मिस्टर प्रणय व्यास ने 80,000 का इतने ग्राम गोल्ड का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमसे खरीदा है 1 साल के लिए। सो इट्स अ प्रोमिसरी नोट, इट्स नॉट रियल गोल्ड यूर बाइंग। सो 1 साल के बाद प्रणय को जितनी मार्केट वैल्यू होगी गोल्ड की, अगर वो नीचे आ गई 80,000 से 70 हो गया, तो 10,000 का लॉस होगा। और 2% या 2% के आसपास, इट कुड बी लेस, इट कुड बी 0.1 or 2% मोर, उतना उनको रिटर्न दे देना इंटरेस्ट में। सो इन एस sovereign gold bonds, you're getting a promissory note, not the real gold. I hope this is clear to everybody. Now, future and options. Very risky asset, right? See, very, very high. These are the contracts, guys. इसमें हम कुछ in reality we are not buying anything. We are not buying stocks. We are not buying anything. We are trading a contract over here. हम यहाँ पे contract buy कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में बारिश होगी। Just for an example, right? मैं बोलूंगा बारिश होगी, आप बोलोगे बारिश नहीं होगी। अगर मेरे फेवर में बारिश हो गई तो आई विल गेट द मनी, और आपके फेवर में हो गया तो यू विल गेट द मनी। इट इज वेरी रिस्की। सो यू आर प्रिडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट? So these are the contracts basically. It's a very, very advanced level. Futures, they are contracts. You can predict markets going upwards and downwards. Options में भी फिर put and call आता है. Put and call को we can sell and buy both ways, and we can use it for hedging as well. There are multiple concepts in this. But अभी अगर आपको simple करके मैं बताऊं, without knowledge you should never start doing future options. Many people start future options straight away without having any knowledge. I want you to learn it first. We will be making a series of video on future options very soon in the future. It's very interesting, and you can get more than 100% returns on this, more than immense returns. But your money can be lost as well. Entire money can be lost. It's very, very risky. So it's just like a knife. काटना अगर अच्छे से आएगा, you can make good vegetables out of that. You can cut vegetables, or you can cut yourself. So it's very, very risky. FNOs, right? But it's a very good tool if you have good knowledge. For this, you need to have good knowledge. So it's a complete disclaimer. Now, rates. See, guys, as gold prices are going up, and you have just started a job, you don't have the money right now, for example, to invest in the real gold, right? Now, what you can do over here, you can invest in real estate investment trust. What exactly it is? Just like gold ETF. अब आपको एक बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. You can buy a small shareholding of that building. These are called as REITs. उस बिल्डिंग की आप छोटी सी एक शेयर होल्डिंग प्रोपोर्शनेट लेवल पे खरीद सकते हो, 500 रुपए देके, 600 रुपए देके, कि मेरी भी इसमें 0.1% शेयर होल्डिंग है, लाइक दैट, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड. आप ही का पैसा लिया मैंने, आपके पैसे से बिल्डिंग खरीद ली, और आपको मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर कर दिया. सो दीज आर रिट्स. इन इंडिया इट इज नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ बिकॉज रिट्स आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज. तो अभी इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम दिस, नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई रिटर्न्स. तो रिट्स में ज्यादा हाई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं. सो इफ यू आस्क मी इसकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे होनी चाहिए, सो इट शुड बी लाइक दिस. इफ यू आर यंग, अगर आप बहुत यंग हो, तो आप, हाँ, अभी एज के हिसाब से देख लेते हैं, नॉलेज के हिसाब से आई एम गोइंग टू गिव यू कॉम्पिटेंस के हिसाब से. बट अभी आप यंग हो, तो योर मोर मनी शुड बी, यू नो
जस्ट अ मिनट बिफोर दिस लेट्स गो फॉर दिस कॉम्पिटेंस के हिसाब से, देन आई गिव यू ऑन द एज। अगर आपने अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, आई वांट यू टू स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फर्स्ट और गोल्ड ईटीएफ, इससे शुरू करो, राइट? ज्यादा ही है तो आप गोल्ड के क्वाइंस ले सकते हो, यू कैन बाय द क्वाइंस ऑफ द गोल्ड, राइट? 1 ग्राम का क्वाइन, छोटा, उससे भी छोटा था 0.5 ग्राम, और मे बी 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स क्वाइन, जितना हो सकता है उतना खरीदो। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। इंडेक्स फंड्स आर आल्सो म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, एक तरीका ये है। अभी देखो, स्टॉक्स में पैसा मत लगाओ डायरेक्टली। आई डोंट वांट यू टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्टॉक्स। Even if you want to invest in the stocks, invest in the top 50 companies. Means you don't have any knowledge. Google करो निफ्टी 50 कंपनीज बस। निफ्टी 50 कंपनीज में 50 कंपनीज की लिस्ट आएगी। मीन दीज आर द टॉपर्स ऑफ द कंट्री, राइट? दीज कंपनीज आर द टॉपर्स ऑफ द क्लास। आपको पता है जो क्लास का टॉपर होगा, पिछले साल भी टॉप किया था, उससे पिछले साल भी, तो इस साल भी टॉप करने की चांसेस हैं। सेम केस, निफ्टी 50 कंपनीज आर दोज कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मिंग है थ्रू आउट। तो यहाँ पे आपके पैसे डूबेंगे नहीं, योर मनी विल नॉट गेट वेस्टेड। सो फाइंड टॉप 50 निफ्टी 50 कंपनीज एंड अमंग्स दोस 4-5 कंपनीज में पैसा लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स। तो आइदर इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 कंपनीज और म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ। बिकॉज अभी आपको नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव द नॉलेज राइट नाउ। फिर आपने सीखना शुरू किया, यू स्टार्टेड लर्निंग, राइट? आपने थोड़ा इक्विटी रिसर्च का कोर्स किया, आपको बेसिक पता लग गया। आईपीओ रिसर्च का कोर्स किया, ऑल राइट, आपको थोड़ा और बेसिक्स पता लग गए। नाउ आप कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू करो। अभी भी आई एम सेइंग गुड स्टॉक्स, निफ्टी 50 कंपनीज में ही पैसा लगाओ, अच्छी बड़ी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में पैसा लगाने से क्या होता है, बड़ी कंपनीज लाइक टाटाज, टीसीएस रख लो, रिलायंस रख लो, दीज आर द बिग कंपनीज, बजाज फाइनेंस रख लो, दीज आर बिग कंपनीज। ये कंपनीज डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दीज कंपनीज आर आउट परफॉर्मर्स एंड दे डोंट डिच योर मनी, राइट? सो मनी इज एटलीस्ट, चांस नहीं है कि आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आप यू विल मेक इनसेन अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ऐसा नहीं होता है कि इसमें आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा, बट यू कैन से कि आपको आराम से 10 से 15-20% रिटर्न मिल जाएगा, बट योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड एटलीस्ट। जब आपने ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग ऑल दिस थिंग्स गाइस, एंड आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है, आपको 2-3 साल हो गए हैं ये सारा कुछ करते करते, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग आइदर इन स्मॉल केस, फ्यूचर ऑप्शंस, इक्विटी। आप इन सब में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं, छोटी कंपनीज में। बिकॉज होता क्या है, जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, द बिग निफ्टी 50 कंपनीज, दे आर स्टेबल कंपनीज, दे डोंट गिव insane amount of returns, but they give stable amount of returns. बड़ी कंपनीज में हमेशा स्टेबल रिटर्न आता है, 10%, 12%, 20% ऑन एन एवरेज। छोटी कंपनीज में योर मनी कैन बी जीरो और योर मनी कैन क्रॉस 100% एज वेल। So these are called as small cap companies. We are going to discuss that thing. तो लेकिन उन कंपनीज में पैसा लगाने से पहले यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, नाउ अब पैसा कैसे लगाना चाहिए, हाउ वी शुड बी इन्वेस्टिंग आवर मनी इन दिस। नाउ गाइस, व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इफ यू आर यंग तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी डाउन होती है, राइट? तो अगर फॉर एग्जाम्पल समवन इज एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो उनको स्टॉक्स में बहुत कम पैसा लगाना चाहिए। यू शुड, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 1 लाख रुपी, राइट? कोई 60 ईयर्स के आसपास है फॉर एग्जाम्पल, तो ही शुड बी इन्वेस्टिंग ओनली 10,000 रुपी इन स्टॉक मार्केट बस, नॉट मोर देन दैट। और 50 से 60 हजार रुपया उनको बॉन्ड्स में या एफडी या आरडी या पीपीएफ पे लगाना चाहिए स्टेबल रिटर्न्स के लिए। क्योंकि उस एज में रिस्क रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इट बिकम्स वेरी वेरी लेस, ऑलराइट? गोल्ड में पैसा लगा देना चाहिए। सो यहाँ पे अगर यहाँ लगा लो या गोल्ड में ज्यादा लगा लो या रियल एस्टेट में लगा लो, बट स्टॉक्स में घटा दो। व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू आर वेरी एज्ड या आपकी एज ज्यादा है, ये सारा वही है, जब जब आपकी एज बढ़ रही है, स्टॉक्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जानी चाहिए। But once you are young, in your 20s, mid 20s, or you have just touched 30s,
then your 80% of your money should be going in the stock market. कम से कम 60, 70, 80 हज़ार रुपए आप स्टॉक मार्केट में लगा दो स्ट्रेट, बिकॉज यहाँ पे आप जितना यंग एज में पैसा लगाओगे यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपके आएंगे उसमें. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग यू स्टार्टेड वेरी यंग, आपने 20s में स्टार्ट किया, एंड व्हेन यू विल बी एट द एज ऑफ 30 और मे बी 40, 50s और 60s, 40 साल के बाद वही पैसा बहुत ज्यादा होगा. It will be huge, huge amount of returns you will be making from this. Same goes when you are in 30s. पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्टॉक्स में पैसा कम लगाओ. When you are young, you can invest in small cap companies as well. छोटी कंपनीज में भी लगा सकते हो, रिस्की कंपनीज में भी लगा सकते हो, बिकॉज ज्यादा रिस्क में ज्यादा रिटर्न आता है. बट वंस यू आर इन योर 50s, आपके बच्चे हैं, यू हैव योर लाइबिलिटीज ऑन यू, राइट, तो स्टॉक्स में पैसा कम कर दो. इंक्रीज योर मनी मोर इन पीपीएफ. पीपीएफ इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपको 7, 7.5, 7.1% के आसपास पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हर कोई इसमें अकाउंट खोल सकता है. एंड यू हैव द लिमिट ऑफ 1.5 लाख पर एनम, एंड यू गेट 7.1%, और ये गवर्नमेंट देती है. इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, राइट. इट इज नॉट द पीएफ ऑफ द कंपनी. कंपनी में जो आपका पीएफ करता है दैट इज डिफरेंट. दिस इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो यू शुड हैव दिस अकाउंट. सब खुलवा सकते हैं इस अकाउंट को. देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years. आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, बट इट्स गुड, एज सच इट इज गुड, राइट. गोल्ड, गाइस, गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल. लड़ाई होगी अगर इफ देयर इज अ वॉर, स्टॉक्स विल फॉल, राइट. बॉन्ड्स कांट बी रिडीम्ड. बैंक में पैसा निकालना मुश्किल होगा. जब एटीएम ही नहीं चलेंगे आप पैसा कैसे निकालोगे बैंक से? और इफ द करेंसी फॉल्स इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू यूज द करेंसी. तब गोल्ड ही काम आता है एट दैट पॉइंट. अब रियल एस्टेट तो बेच नहीं पाओगे उस टाइम, तो गोल्ड ही उस टाइम काम आता है. गोल्ड इज द इमरजेंसी करेंसी. हमेशा यंग एज से ही ये चीज स्टार्ट कर दो. अगर आपकी सैलरी अभी 20,000 है, 30,000 है और 50,000 है, 10-10 हज़ार रुपए या 5 हज़ार रुपए हर महीने का संभाल के रखो एंड क्वाइंस में इन्वेस्ट करना शुरू करो. बाय क्वाइंस इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी, बिकॉज ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्वाइन में कम रहता है मेकिंग चार्ज. तो इन्वेस्ट इन गोल्ड क्वाइंस गाइस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ऑलराइट, नाउ डाइवर्सिफिकेशन. जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू कि मैंने एक दो कंपनीज के ही शेयर खरीदे, बस अगर वो गिर गए तो नुकसान, और सारा पैसा उन एक दो शेयर्स में लगा दिया. अगेन इट्स नॉट अ गुड वे. अंडर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इतने भी कम मत खरीदो. कई लोग क्या करते हैं, 50 to 100 कंपनीज में पैसा लगा देते हैं. मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 हज़ार के एक शेयर खरीद लिए, 1 हज़ार रुपए के एक और, 1 हज़ार के एक और. दिस इज हाउ आई कीप इन्वेस्टिंग इन इन सो मेनी डिफरेंट stocks. But it becomes very difficult to manage all of them. सबके ऊपर नजर रखना, देखना, how how they're performing, that is not good. That is called as over diversification. The best thing that you can do right now is optimum diversification. So 10 से 12 shares खरीदो, 10 to 15 shares बस. Don't increase it too much, right? Don't invest in all the instruments. म्यूचुअल फंड में भी डाल दिया, म्यूचुअल फंड भी 4-5, स्टॉक्स भी 50-60, थोड़ा सा गोल्ड भी ले लिया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ले लिया, सिंपल बॉन्ड्स भी ले लिए, एफडीज भी, आरडीज भी. सी गाइस, इट विल मेक यू क्रेजी. आप इतने सारी चीजों को देख नहीं पाओगे. यू कांट कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स. द बेस्ट यू कैन डू, आप 4-5 चीजें शॉर्टलिस्ट करो, 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इन्वेस्ट इन दैट. डोंट टू मच डाइवर्सिफाई योरसेल्फ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ, वेयर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. ये मैंने आपको बताया स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में हमें पैसे लगाने चाहिए. See, they are large companies, large cap companies. See, cap is capitalization, market capitalization, and I don't want to get into that right now, technicalities. But जो बड़ी कंपनीज होती हैं like TCS, Reliance, see, इन कंपनीज में पैसा लगा के होता क्या है, आपको ऐसा कोई 100% रिटर्न नहीं मिलेगा. बट these companies are stable companies. At least you will be getting 10 to 15% और मे बी 20%. इतना मिल जाता है आराम से. यहाँ पे बेनिफिट क्या है, रिस्क कम होता है. बिकॉज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, वो इट विल नॉट क्रैश, बंद तो नहीं हो जाएगी ना. सो वी हैव दिस फेथ एटलीस्ट इन दीज कंपनीज. तो लार्ज कैप में यही बेनिफिट होता है कि दीज कंपनीज गिव स्टेबल रिटर्न्स बट नॉट वेरी हाई रिटर्न्स. देन कम्स द मिड कैप कंपनीज.
दीज आर द कंपनीज जो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा छोटी भी नहीं है। यहाँ पे आपको 20% रिटर्न मिल जाता है, 20 to 25 और 30%। बट यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है, द ओनली इशू इज दैट these are small companies. Sometimes chances are there you may get 25-30% returns. कई बार चांसेस हैं कि आपको रिटर्न 5-6% ही मिले। मीन्स इट्स नॉट स्टेबल, इट इज वेरी वॉलेटाइल, फ्लक्चुएटिंग अबाउट। सो यस, रिस्क ज्यादा है इसमें, सो दैट इज वाई रिस्क इज वेरी हाई। सो समटाइम्स यू मे गेट वेरी हाई रिटर्न, समटाइम्स लो रिटर्न। देन कम द स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। ऐसी ऐसी कंपनीज भी होती हैं, दे आर कंपनीज जो नई, विच आर न्यू, विच आर वेरी स्मॉल। लेकिन छोटे से ही तो बड़ा होगा ना इंसान। मीन्स कोई कंपनी बहुत छोटू है अभी, वेरी स्मॉल कंपनी, कल छोटे से ही बड़ी होगी। अ डे वाज, रिलायंस भी कभी छोटी होती थी, नाउ सी रिलायंस इज अ बिग कंपनी, राइट। नाउ अगर ऐसी कोई कंपनी हमें मिल जाए, जस्ट इमेजिन, जो अभी बहुत सस्ती है मार्केट में, एंड उसमें ग्रोथ आती है, यानी 10 साल में, 20 साल में इट ग्रोज 500%, तो आपका पैसा भी तो ग्रो करेगा। बट इन कंपनीज में एक नुकसान क्या रहता है, द ओनली थिंग इज दैट रिस्क इज वेरी हाई। कितनी ही कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। ऐसा भी हो सकता है आपने छोटी कंपनी में पैसा लगाया, आपका पैसा इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया, इट बिकम्स 200%, 300%। ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए एंड योर मनी मे गेट लॉस्ट। So the thing is that small cap companies will give you very high returns, 40% and more than 40% as well. But it comes with a risk, risk of shutting down, risk of going bankrupt, risk of, you may get very good returns, you may not get any return, or you may make losses as well. तो इसमें पैसा कैसे लगाना चाहिए? इफ यू आर यंग तो ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो। इफ यू आर इन मिड एज तो आप लार्ज कैप में ही पैसा लगाओ। So your more money should be, invested in large caps. Then comes the mid cap and some experimenting, कि जो आपका ऐसा लगे यार चलो पैसा डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसा पैसा आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दैट मनी फॉर द एक्सपेरिमेंटिंग। So that is called as small cap companies. I hope this is clear to everybody. Okay. Now coming to blue chip companies, blue chip is just a synonym used for the large cap companies. इसी के लिए blue chip यूज होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए। व्हाट इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग? ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या है सर? सी, आपको अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप क्या करो, गूगल में लिखो निफ्टी 50 कंपनीज। वहां पे इंडिया की 50 कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से किसी में भी पैसे लगा लो, योर मनी विल नॉट बिकम जीरो। यू विल इजिली गेट 15 to 20% रिटर्न आपको मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे अगर होता भी है, आपको कुछ सालों के बाद अच्छे से रिटर्न मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। राइट, निफ्टी 50 कंपनीज, सेंसेक्स कंपनीज, जो भी अच्छी कंपनीज हैं, आप उसमें पैसे लगाओ। इट्स अ गुड थिंग। Guys, before I proceed further, I would like to give you a disclaimer. Whatever taught in the class, whatever things what I will be saying over here should be used for educational purposes, should not be considered as an advice for investments. आई होप दिस इज क्लियर। आप यहाँ पे सिर्फ सीखने आए हो, उसको सीखो, प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग होता है, पेपर में असली के पैसे मत लगाओ, जस्ट इमेजिनरी पैसे लगाओ। वंस यू इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग 1 to 3 years, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। ऑलराइट, नाउ डिविडेंड कंपनीज, गाइस देयर आर फ्यू कंपनीज, एज आई टोल्ड यू, वो आपको डिविडेंड्स भी देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। सो देयर आर कंपनीज जो डिविडेंड देते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट इन सच कंपनीज एज वेल। यहाँ पे एक नुकसान ये रहता है इन डिविडेंड कंपनीज में, कि आपका कैपिटल गेन ज्यादा नहीं होता, यू डोंट गेट ह्यूज कैपिटल गेन्स। व्हाट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज दैट कि आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, यू विल बी गेटिंग डिविडेंड्स। बट इस डिविडेंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट 1 लाख रुपी डिविडेंड, 1 लाख रुपी ईयरली डिविडेंड, आपको चाहिए कि मुझे 1 साल का मुझे 1 लाख रुपए डिविडेंड आए, तो कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट दैट मच एडवाइज्ड, बिकॉज इन कंपनीज की कैपिटल ग्रोथ बहुत कम होती है, कैपिटल गेन बहुत कम मिलता है। मीन्स शेयर प्राइस की मूवमेंट बहुत कम होती है इन कंपनीज में। सो यस, you can invest, but if you take my advice, dividend investments is not something which you should be seeing. You should be seeing the returns, कितने रिटर्न आपको आ रहे हैं, not the dividends. Dividend is just an add-on over here. I hope this is clear to everybody. Now, guys,
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट शुड बी सॉर्टेड बिफोर यू स्टार्ट एलोकेटिंग योर सैलरी इन स्टॉक मार्केट. हाउ एंड व्हाई? सी, सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल आपने सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया और फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, फिर वो पैसा, वेयर विल यू मैनेज द मनी? आपने सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दिया, बच्चों की फीस देनी हुई, फिर आप, यू कांट गो टू स्कूल एंड से कीप माई स्टॉक्स. इफ यू इन्वेस्टेड योर एंटायर मनी ओवर देयर, कल को चावल खरीदने जाना पड़ा, देन वेयर विल बाय योर राशन फ्रॉम, राइट? नाउ बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट, सबसे पहले आप एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर ले लो, ताकि कल को कोई बीमार होता है या आप बीमार होते, यू हैव दैट कैश इन योर हैंड, जो कि आपके उन डे टू डे इमरजेंसीज के लिए इट विल बी हेल्पिंग. तो मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट. मेडिकल इंश्योरेंस के बाद ही जो पैसे आपकी सैलरी से बचेंगे, यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. सेकेंड थिंग, थोड़ा सा पैसा आप अपने डेली काम के लिए रखो. मीन्स यू शुड हैव सम मनी टू यूज, टू रिफ्यूल योर कार और रिफ्यूल योर बाइक्स. उबर में जाना है उसके लिए पैसे, मूवीज देखनी है पैसे, थिएटर में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए सम कैश इन हैंड शुड बी देयर. वो थोड़ा होना चाहिए. मीन्स if you say you are earning 1 lakh rupee for example, for easy numbers, आपका कम से कम 1 से 2 हजार रुपए पर मंथ अगर प्रीमियम जा रहा है मेडिकल इंश्योरेंस का, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. फिर डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए कम से कम 10 से 15 20 हजार अपने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कार का फ्यूल, वो सारा कुछ, तो उसके लिए आपके पास कैश होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट शुड बी सॉर्टेड, दैट इज रिटायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पैसे लगा दिए, सारा पैसा डूब गया, फिर बूढ़े होके क्या करोगे? सो यू नीड टू हैव सम मनी, ताकि आप अभी से ही नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे लगा लो. एनपीएस बोलते हैं उसको. आई वांट यू टू ओपन द वेबसाइट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना शुरू कर दो. यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड कि कल को बूढ़ा होगा, थोड़ी बहुत पेंशन तो चाहिए, राइट? बिकॉज वी आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, वी मे नॉट एंड अप हैविंग रिटायरमेंट पेंशंस. सो अगर ये तीनों चीजें सॉर्टेड हैं, इफ दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, only and only then you should start investing in stock market, real estate, gold and cryptocurrency and alternatives. ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी आई 20 हजार रुपए और 20 हजार का 20 हजार स्टॉक्स में डाल दिया, कल को बीमार पड़े तो हाउ विल यू मैनेज योर फंड्स? यू नीड टू हैव सम डेली लिक्विडिटी. सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? नाउ ये जो परसेंटेज है, दिस परसेंटेज कैन बी वेरिंग, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो आप अपनी वाइफ की सारी सैलरी डाल सकते हो स्टॉक मार्केट में. दैट्स फाइन, बिकॉज वन पर्सन कैन हैंडल डे टू डे एक्सपेंसेस. बट if there is only one person who is earning, then he has to decide these things. Then he has to see the medical emergency for the entire family as well. So this percentage part can vary, but this criteria should not vary. ये तो ऐसे ही रहना चाहिए. Alright, I hope this is clear to everybody. Alright, तो सर ठीक है, सब अच्छा लगा हमें. स्टार्ट कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है. यू हैव टू स्टार्ट अ डीमैट अकाउंट. ये डीमैट अकाउंट कहाँ से खोल सकते हैं? देयर आर सो मेनी कंपनीज. एसबीआई है, जेरोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, सो मेनी कंपनीज आर देयर. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी कंपनी. जो कंपनी अच्छी लगे, इंटरनेट में रिव्यूज देख लो, वहां पे आप एक अपना अकाउंट खुलाओ. इस अकाउंट को सेविंग अकाउंट नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट, राइट? एक डीमैट अकाउंट लगेगा. इसको खोलने के लिए आपके यू विल बी चार्ज अराउंड 400 to 600 800 रुपी, इतना ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है. डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, ये डॉक्यूमेंट्स आप दोगे, राइट? इसमें आपको फॉर डेरिवेटिव्स आपको एक स्पेशल परमिशन लेने पड़ती है, वो आपने देख लेना है. देन यू कैन ऐड योर मनी, लाइक द वे यू ऐड योर मनी इन योर, यू रिचार्ज योर मोबाइल फोन, सिमिलरली आपको ये डीमैट अकाउंट रिचार्ज करना पड़ता है. यू हैव टू पुट मनी इन दिस वॉलेट. यहाँ पे एक वॉलेट मिलेगा आपको. इस वॉलेट में यू हैव टू keep refilling this wallet, and then you can use this डीमैट अकाउंट for the stock trading. फिर आप उसको ऐसे ट्रेड के लिए, जैसे ये डीमैट अकाउंट है, दिस इज फॉर अ कंपनी कॉल्ड Zerodha. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट सी यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. यू विल गेट टेक्निकल चार्ट्स ओवर हियर, यू विल गेट बाइंग एंड सेल. फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन दिस ट्रेड, so you will get, you can buy and sell from here itself. तो आप यहीं से सब कुछ कर सकते हो. So you should start a डीमैट account for this. Alright. Now, what is the process? सर ये स्टार्ट कैसे होती है? How the stock market works? See, stock market
opens at 9:15। आम आदमी के लिए जो स्टॉक मार्केट है 9:15 पे खुलती है, सुबह 9 सवा 9 बजे। बट हमेशा याद रखना 9:15 से पहले स्टॉक मार्केट वर्ल्ड ट्रेडर्स, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, इंटरनेशनल एफआईआईज के लिए 9 बजे खुल जाती है। तो अगर हमने सोचा है आज शाम को, फॉर एग्जांपल टुडे रिलायंस क्लोज्ड एट 2000 रुपी, आपने सोचा होगा कि यार मैं कल सुबह ही 9:15 रिलायंस को मैं 2000 रुपए में खरीद लूंगा। बट जब 9 बजे, when at morning 9 a.m. FIIs, foreign institutional investors, when they will start investing, right? तो उससे होगा क्या? उससे मार्केट पहले ही फ्लक्चुएट लग पड़ेगी करने। तो जब आप स्टॉक मार्केट आपके लिए खुलेगी, एक आम आदमी के लिए, हमारे लिए, तो स्टॉक, वो जो रिलायंस का प्राइस था ऑलरेडी या तो 2000 से ऊपर हो चुका होगा या 2000 से नीचे। इट मीन्स बिफोर दिस 9:15 already trading has taken place or investments have taken place, and because that the volatility is already there, तो पहले से ही मार्केट ऊपर नीचे हो चुकी होती है, एंड दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल टाइम। तो सुबह 9:15 के आसपास मार्केट जब खुलती है, तो या तो वो अप में खुलती है या डाउन में खुलती है, बिकॉज हम पहले ही फॉरेन के लोग इसमें ट्रेड कर चुके होते हैं। एंड वाई इट ओपन्स एट 9 a.m. फॉर अदर्स? बिकॉज गवर्नमेंट को फॉरेन एफआईआई से टैक्स मिलता है। they invest in our country and government charge tax on that, right? And market शाम को 3:30 बजे तक रहती है। Always remember one thing guys, सुबह 9:15 एंड शाम को 3 से 3:30 के बीच में markets are very volatile, very volatile. People make good profits at this time as well, and people lose money at this time as well. ये जो टाइम होते हैं, इन टाइम्स में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। इस टाइम में सिर्फ तभी घुसना चाहिए मार्केट में when you are really really pro, when you are really very, you can say, when you are really very experienced in stock market for a very very long time, right? Now, how the entire process works, ये सारा का सारा काम कैसे करता है, how this process works is that आज मैंने फॉर एग्जाम्पल आई परचेज्ड स्टॉक टुडे, मैंने आज शेयर खरीदे। सर ये शेयर्स आते कैसे अकाउंट में, हाउ मेनी डेज इट टेक्स, होता क्या है, पर्दे के पीछे क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द कर्टन्स, राइट? आज मैंने शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे आज, वो आज नहीं आते मेरे अकाउंट में। दिस इज अ T1 साइकिल, इसको बोलते हैं ट्रेड प्लस 1 डे, मतलब हमें एक दिन लगता है। तो आज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, राइट? अब ये जो शेयर्स हैं ये मेरे अकाउंट में अगले दिन आएंगे, नेक्स्ट डे, राइट? सिमिलरली अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो किसी ने तो बेचे होंगे, राइट? तो उसके अकाउंट में अगर कोई शेयर बेचेगा तो उसे बदले में पैसा मिलना चाहिए, राइट? सो अगेन उसको भी T+1 डे लगेगा। मीन्स आज मैंने अपने शेयर्स बेचे तो मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो कल आएगा। सो इट टेक्स 1 डे। So if I buy shares on Monday, the shares will come in my account on Tuesday, और Tuesday को वापस आएंगे। Similarly, if I sell my shares on Monday, there is a seller, right? So he will get the money on Tuesday. So there is a T1 cycle. इसको बोलते हैं कि ये एक दिन के बाद वापिस आते हैं। टी ट्रेड प्लस 1 साइकिल। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पहले ये सब होने में 3 दिन लगते थे, उससे पहले 7 दिन, उससे पहले एक टाइम ऐसा भी था जब 2 हफ्ते 14 डेज लगते थे। एंड वी आर द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस, हम पूरे वर्ल्ड में वी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। नाउ ये होता कैसे, हाउ इट वर्क्स? आपने ट्रेड आज पुट किया, यू प्लेस्ड एन ऑर्डर टुडे, राइट? मे बी बाइंग और मे बी सेलिंग। फिर ट्रेड की मैचिंग होती है, देयर इज मैचिंग दैट गोज ऑन। मैचिंग मीन्स ये जो ट्रेड बाय कर रहा है, क्या इसके अकाउंट में पैसे हैं, पहली बात। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बाइंग 10 शेयर्स, तो मैचिंग होगी कि क्या कोई 10 शेयर बेच भी रहा है, राइट? इट कुड बी एक इंसान 8 शेयर्स बेच रहा है, इट कुड बी वन अनदर पर्सन कुड बी सेलिंग 2 शेयर्स। तो सारे 8 + 2 10 वो कंबाइन किए जाएंगे और मैंने 10 शेयर तब मुझे बेचे जाएंगे वो। सो वो सारा कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड बेसिकली। सो देयर इज अ मैचिंग गोइंग ऑन। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 शेयर्स खरीदने का ऑर्डर डाला, वहां 10 शेयर्स है ही नहीं, नो वन इज सेलिंग 10 शेयर्स, तो मेरा ऑर्डर डिक्लाइन भी हो सकता है। सेम गोज विद द सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है, अगर मैंने बेचने का ऑर्डर डाला और कोई खरीदना ही नहीं चाहता है,
तो दिस ट्रेड मैचिंग विल फेल एंड इट कैन गेट कैंसल्ड। तो ऑर्डर्स कई बार कैंसिल भी होते हैं, खासकर हमें कभी भी ऑर्डर 3 बजे के बाद नहीं कैंसिल कर, मतलब वी शुड नेवर पुट प्लेस एन ऑर्डर आफ्टर 3:30 और अराउंड 3। वाई? समटाइम्स द वॉलेटिलिटी इज टू हाई कि हमने शेयर बेचने की कोशिश की और बिका ही नहीं, या हमने खरीदने की कोशिश की, खरीदा ही नहीं है, बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स इस टाइम में मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेड मैचिंग कैन फेल, हाँ ये होता है, इट कैन फेल, राइट। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट आपने 10,000 शेयर्स खरीदे, 1 लाख शेयर्स, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बाइंग यू आर बाइंग, राइट। कई बार क्या होता है, इतने सारे सेलर्स या बायर्स मिलते ही नहीं है, सो योर ऑर्डर मे गेट कैंसल्ड समटाइम्स एज वेल। तो आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो सकता है, दैट कैन बी कैंसल्ड एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Now, once the order matching is also done, ठीक है, buyer भी मिल गया, seller भी मिल गया, then order confirmation will be done। ये order confirmation exchange की तरफ से आएगा, right? For example, National Stock Exchange। तो बायर को भी एक मैसेज आ जाएगा, सेलर को भी, हाँ योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, कल तक आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा, राइट। फिर इसके बाद आता है नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का यही काम होती है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब ये सारा के सारे ऑर्डर को एक दिन लगेगा प्रोसेस होने को। बायर के शेयर्स सेलर से शेयर खरीदे जाएंगे, उसमें नाम चेंज किया जाएगा कि अब ये शेयर मिस्टर प्रवीण से मिस्टर प्रणय व्यास के पास जा रहे हैं, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाएगा और वो मेरे पास भेजे जाएंगे। और प्रणय के पैसे उठा के मिस्टर प्रवीण के पास भेजे जा रहे हैं, तो वो पैसा उठा के वहां भेजा जाएगा। दिस इज डन बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। वी हैव टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, NSCL, so National Stock Exchange Clearing Corporation Limited, right? Indian Clearing Corporation Limited for BSE. We have two clearing corporations for different for both the exchanges. ये हो गया, वो शेयर्स मेरे पास आ गए और मेरे शेयर्स वहां चले गए। नाउ लास्ट स्टेप, दैट विल कम द डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? ये सारी ट्रांजैक्शन होगी। अब कल को, फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई मुकर गया फिर कि सर मैं तो शेयर्स खरीदे ही नहीं, या कल को मेरे शेयर्स, अगर कल को किसी को कुछ हो जाए, इफ समवन परचेज द शेयर एंड ही डाइज फॉर एग्जाम्पल, तो वो डेटा कहाँ जाएगा? तो देन कम्स अ डिपॉजिटरी। नाम ही डिपॉजिटरी, मीन दे डिपॉजिट all this data, all the ledgers in electronic format। ये जितना सब कुछ हुआ यहाँ तक, किसने बाय किया, किसने सेल किया, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, वो डेटा कहीं तो सेव होगा। लेकिन अगर उस डेटा को हम फिजिकली सेव करेंगे फाइल्स में, तो कितना सारा स्पेस लगेगा। सो व्हाट दे डू, दे सेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। दीज आर कॉल्ड एज डिपॉजिटरीज, राइट। So this is how the entire process takes place for the stock market purchase and selling. I hope so. That is why it is called as settlement processes of T plus 1 day. You receive the money or shares next day in your demat account. I hope this is clear to everybody. तो जो बायर होगा उसके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे डीमैट में, और जो सेलर होगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो ये सारे के सारे, दीज आर द स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसे लगाए, खरीदा। ट्रेडर्स होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंट्राडे, वो भी हम करेंगे जस्ट इन अ मोमेंट। FIIs आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैंने कहा आपको, बड़े बड़े, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग कंपनीज, they do trading and investments in India, right? So these are called as FIIs. Now there is a difference between FII and FDI, foreign direct investment and foreign institutional investments। FDI का मतलब होता है McDonald's, it came to India, it started their offices, it started their selling sites। You can buy McDonald's burger somewhere, so there is a shop of McDonald's, right? They start their factories in India, whereas FIIs, foreign institutional investors, they just invest in the stock exchange or invest in the companies as investors। वो सिर्फ कंपनीज में पैसा लगाते हैं। That's it. These are FIIs. और FDI का मतलब होता है when they set up their offices in India, right? Now, what are the stock exchanges? Stock exchanges are the platforms where the trading takes place. NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. SEBI. Guys, इतना कुछ हो रहा है. So many things are taking place. There should be someone who is keeping an eye on this, who is regulating all this, who is a watchdog. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? So this is SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये
सबके ऊपर नजर रखता है, इट्स अ रेगुलेटर। कुछ गड़बड़ होगी, इट्स ट्राई टू मैनेज द थिंग्स, राइट। नाउ कम्स द ब्रोकर्स। ब्रोकर्स आर द वेबसाइट्स, जैसे ये वेबसाइट है, दिस इज अ ब्रोकर, जेरोदा इज अ ब्रोकर। ये क्या कर रहा है, इट्स गिविंग अ प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में मैं टेक्निकल चार्ट्स कर सकता हूँ, आई कैन ट्रेड, फॉर एग्जांपल सी, I am buying and selling over here. Now what is happening, I am doing all the things on the exchange। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बदले में I am giving some of penalty fees to them। These are the brokers। Depositories, as I told you, once everything is done, these are the depositories which will keep the ledgers electronic, in the electronic form। जो भी ट्रेड हुआ है, बाइंग सेलिंग, कितने में, कब, कौन सी डेट में, कितने शेयर्स खरीदे, उसका डेटा कहीं तो सेव होना चाहिए। तो इट इज डन इन डिपॉजिटरीज। सो वी हैव टू डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। सो आई वांट यू टू, ये दिस इज अ होमवर्क कि इसमें से कौन सा स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, और is it a good advice to invest in one of these if it is registered in the stock exchange? So it's a homework for you। Then comes the clearing corporations। ये हमने कर लिया। Clearing corporations, they make things easy। They execute the trades, they execute the buying and selling easily। Listed companies, as I told you, कंपनी स्टॉक मार्केट में जाती क्यों है, बिकॉज दे रेज फंड्स, दे रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। सो पब्लिक को जब पैसा उठाते हैं लोगों से, बदले में उनको शेयर्स देने पड़ते हैं। सो दीज आर द कंपनीज who are registered in stock exchange and they raise money from the public for investments, right? तो जो शार्क टैंक इंडिया में आते हैं पैसे लेने के लिए लोग, what are they? That is not public, that is private। so they, it is public when they are going to public, and Shark Tank India they are going to private, that is called as private placement। कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, बदले में हम आपको शेयर्स दे देंगे। So that is private placement। So these are the companies which are not registered, and they are companies which are registered। Reliance, TCS, they are registered in stock exchange। I hope this is clear to everybody। Then comes the mutual funds, guys। See guys, this is an AMC, is it? This is asset management company। What happens basically? Let's take example of SBI। आपने सुना होगा SBI is having so many mutual funds under it। SBI is having 60 to 70 mutual funds। So SBI is an asset management company। जो SBI है उसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। SBI के अंडर आता है ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, SBI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, SBI डायरेक्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। There are so many mutual funds within SBI। So SBI is asset management company, and under that there are so many mutual funds। Similarly, there is for ICICI, there is for Quant mutual fund। So Quant is a asset management company, and within that there are so many mutual funds। I hope this is clear to everybody। Now then comes market analysis, guys। There are so many tools available जहाँ पे आप market analysis कर सकते हो, that you can see in our equity research platform, and there is media and research platforms as well। Now one more advice I would like to give you, never ever trust on somebody। For example, there is a thing called pump and dump। Let's take my example। You all trust me, I am your teacher। अगर मैं आज आपको ऐसा बोलूं कि यार सारे टीसीएस में पैसा लगाओ, बहुत ऊपर जाने वाला है, एंड यू विल बी ट्रस्टिंग मी, आप मुझ में ट्रस्ट करोगे, आप टीसीएस में पैसा लगा दोगे, टीसीएस ऊपर जाएगा, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा, बिकॉज सोच इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। जब वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, वट आई विल डू, आई विल शॉर्ट सेल इट, और जब वो नीचे गिरेगा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। सो नेवर एवर हैव फेथ ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज वो सब किसी ना किसी बिजनेस ओनर के होते हैं। they all the media platforms are owned by the companies and the big businesses, right? So they can use this media platforms for their own vested interests, right? So it is advisable to never ever blindly have faith on the media platforms, right? And the research platforms as well। Always do your own equity research and then try to relate it with the news। I hope this is clear to everybody। Okay, so what are the ways I can execute a trade? See, अब सर हमें आइडिया हो गया थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट का। अब ये चलता कैसे है सर? अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में? what are the things I can do in stock market?
सबसे पहली चीज है डिलीवरी ट्रेड. Let me show you over here. So see guys, I'm not showing you the main home page because of the privacy constraints. मैं अपना data I don't want to reveal my account number to you. So मैंने ये वाला पेज खोला है. इसमें my account number is not visible because I don't want nowadays, so many hacking and all can take place. I don't want to that should be done over here. So यहाँ पे you can't find my account number क्योंकि इसके home page में you can see my account number. So see यहाँ पे normal MIS ये लिखा हुआ है. So these are the types of trade I can make. This is the quantity I can buy over here, and buy and sell. This is how it can be done, right? So I can buy, I can sell. In the main page आपको यही icon बड़े उसमें मिलेगा. वहां पे और ज्यादा ऑप्शंस होंगी. So let me show you over here what I want to say. सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं that is called as in delivery. डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीदा and I want to hold it for 10 years, 20 years, 50 years. One more thing, I can gift it to my children as well. मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा अगले 50 सालों के लिए. मे बी आई मे बी अलाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई मे नॉट बी अलाइव. तो मेरे माई चिल्ड्रन कैन यूज दैट. So that is called as delivery trade. Means, right? Delivery trade. Why it is called as delivery? Because the real delivery is taking place. मुझे सच में शेयर्स मेरे नाम पे आते हैं. जब मैं इस शेयर को बाय करूंगा तो T+1 मीन्स आई विल गेट द शेयर्स नेक्स्ट डे एंड आई विल गेट अ ईमेल. उस ईमेल में पीडीएफ फाइल होगी. आई टोल्ड यू ना, डिपॉजिटरीज दे विल सेंड अ पीडीएफ फाइल जिसमें लिखा होगा मिस्टर प्रणय व्यास ने 10 शेयर रिलायंस के खरीदे इस डेट को इतने रुपए में, एंड उसमें मेरी ऑनरशिप लिखी होगी. माय ऑनरशिप वुड बी मेंशन्ड. So even if I'm there on this earth, or if I'm not there on this earth, right, I'm alive or I'm not alive, my children can use that PDF and they can redeem this after as many years they want. अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? आई टोल्ड यू दीज आर द डिपॉजिटरीज. NSDL, CDSL, दे विल वेरीफाई इट, क्योंकि जो डेटा मेरे पास होगा वो डेटा डिपॉजिटरी के पास भी रहता है. So this is called as delivery trading, right? Delivery investing. It is for long run, right? So it can be done two ways. I can buy it today and sell tomorrow as well, or I can keep it for so many years, 50 years, 100 years, 10 years, 5 years. This is for very long run. The same thing can be sold tomorrow. But I can do, आज मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे 2000 में, कल वो 3000 के मैंने कल ही बेच दिए. सो इट कैन बी डन. दिस इज कॉल्ड एज BTST, बाय टुडे सेल टुमारो. ये सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे तो. इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा BTST इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. आप खरीदो आज, जब प्रॉफिट हुआ बेच दो. फिर से कोई नया शेयर खरीदो जो वॉलेटाइल है, खरीदो और बेच दो. इसमें लॉसेस कम हो जाते हैं बिकॉज यू विल नॉट रिडीम अंटिल एंड अनलेस यू आर मेकिंग प्रॉफिट. इसमें लॉसेस कम हो जाते हैं थोड़ा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ व्हाट इज दिस इंट्राडे सर? सी, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड की ऑप्शन डाली, मैंने यहाँ पे MIS में क्लिक किया. इट इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग. व्हाट डज इट मीन्स? बेसिकली इट मीन्स कि मुझे आज सुबह 9:15 बजे, एज आई टोल्ड यू कि हमारी मार्केट कितने बजे खुलती है, ये खुलती है सुबह 9:15 पे 3 बजे तक. इंट्राडे का मतलब होता है इट इज अ ट्रेड विच इज टेकन इन दिस डे, विद इन दिस डे. तो मुझे 3 बजे, मैंने 9 बजे खरीदा, 9:15 एंड आई हैव टू रिडीम इट बाय 3:30 और बिफोर 3:30. मुझे इससे पहले पहले वो ट्रेड अपना कैंसिल करना पड़ेगा. अगर मैंने बाय किया है, आई हैव टू सेल इट बाय 3:30, और अगर मैंने शॉर्ट सेल किया है तो आई हैव टू बाय इट बिफोर 3:30. दिस इज कॉल्ड एज इंट्राडे ट्रेडिंग. इट कांट बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट डे. अगले दिन मैं नहीं ले जा सकता. मुझे आज के आज ही ये कैंसिल, आज के आज ही ये क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड. दिस इज कॉल्ड एज इंट्राडे. इट इज रिस्की एज सच. अगर तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इट्स फाइन, मैं इसको बेच दूंगा. लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा, देन इट कैन बी बिट रिस्की. वन मोर थिंग, अगर आप 3:30 बजे तक अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने से मिस कर गए, इफ यू मिस योर ट्रेड, देयर आर चांसेस कि आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, कि आपने 3:30 बजे तक अपना शेयर, अपना जो ट्रेड है वो कैंसिल नहीं किया. मीन्स इट कैंसिल इन द सेंस अपना शेयर आपने पूरा नहीं किया अपना ट्रेड. सो इंट्राडे इज द सेम डे ट्रेडिंग. लोग इसको बहुत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं इसमें, एंड लूज भी करते हैं बिकॉज इट इज वेरी रिस्की.
BTST is better than this, but still if you are interested in this, इंटरडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आपको आज के आज ही अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है. Then comes future options. Future options, let me show you a good website for this. So guys, this is for the future options, right? Sensible. ये Zerodha में you get complimentary in Zerodha. So it is very good website and it is having so many strategies over here, right? यहाँ पे आपको काफी सारी strategies मिलेंगी. अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू कैन मेक मनी जब मार्केट ऊपर जा रही है तब भी, मार्केट नीचे जा रही है तब भी. You can make money from all the analysis, and you need more knowledge for this, you need more practice for this, because यहाँ पे बहुत सारे parameters हैं that come into play. We will be discussing future options in the coming videos, because it's again going to be a big series for the future options derivatives. But future options will give you good returns, very good returns, very high returns, and comes with huge risk. Means it can really blow your money. It can really you can burn your money in future options. Zero straight. Short selling is something very tricky for the newbies. Short selling, तभी मैंने इसकी definition लिखी है. Stock selling, short selling is of a stock. Before you buy something, you are selling it. Expecting the price to fall. You borrow shares from a broker and buy them back later. इसका मतलब है मैंने बाय करने से पहले किसी चीज को सेल कर दिया. मींस let me show it over here. Let me break it down for the Nifty Reliance. Now guys, for example, if I use this data and if I cross it, मैंने यहाँ पे रिलायंस का शेयर सेल किया. I did a short selling over here. तो जितना ये नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आई विल बी मेकिंग. सो इट कैन बी डन ओनली इन द इंट्राडे. आप इसको इंट्राडे में ही कर सकते हैं. यू कैन डू इट इन डिलीवरी. और आपको इसको हाई में बेचना पड़ेगा, और जब ये नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आप करोगे. यहाँ पे यू हैव टू बाय इट. मींस यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रेड बाय बाइंग. आपको बाय करना ही पड़ेगा. मैंने यहाँ पे एक शेयर रिलायंस का शॉर्ट सेल किया और यहाँ पे उस शेयर को फिर मैंने बाय कर लिया. जितना पॉइंट नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आई विल बी मेकिंग. अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूं, वन मोर थिंग आई कैन डू, आई कैन बाय हियर एंड ये ऊपर जाएगा तो आई कैन सेल. दिस इज नॉर्मल ट्रेडिंग. लेकिन अगर मैंने ऊपर सेल किया और नीचे बाय किया तो इट इज कॉल्ड एज इंट्राडे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इंट्राडे, this is called as short selling, and short selling can be done either in intraday or in future options. मतलब स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिरे तब भी आई कैन मेक प्रॉफिट्स. अगर मुझे पता है कल स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाली है तो मैं बाय नहीं करूंगा, फिर मैं शॉर्ट सेल करूंगा. जितना नीचे ये जाएगी उतना प्रॉफिट मुझे मिलेगा. इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम लोगों ने कब कमाया था? कोविड के टाइम में. कोविड के टाइम में गाइज एवरी कंपनी वाज फॉलिंग डाउन. तो हम सुबह उठते थे, उठते ही शॉर्ट सेल करते थे. जितना पॉइंट कंपनी नीचे जाती थी उतना हमें प्रॉफिट, और शाम को हम उसको बाय करके निकल लेते थे. दिस इज कॉल्ड एट शॉर्ट सेलिंग, राइट. शॉर्ट सेलिंग में बस एक नुकसान है, अगर आपने यहाँ शॉर्ट सेल कर दिया और मार्केट ऊपर चलेगी यहाँ पे, मीन्स योर प्रेडिक्शन गोज रॉन्ग. सो व्हाट वुड हैपन ओवर हियर? यू विल मेक लॉसेस. मीन्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, मार्केट वेंट अप, सो इट विल गिव मी लॉसेस. तो शॉर्ट सेलिंग सिर्फ तब की जाती है when I am expecting markets to go down. I hope this is clear to everybody. This is called as algo trading. Algo, now guys, since the technology is coming up, technology बढ़ रही है, so there are softwares. अब softwares आ गए हैं मार्केट में जो आपको खुद बता देते हैं बाय सेल, अभी मत खरीदो, अभी खरीद लो. ये जो दिमाग है ये खोटी करने की जरूरत अब है ही नहीं. Slowly and steadily we are moving towards that generation of investment banking when algo trading is coming. This trading is automated. आप बस पैसे डाल दो, आपका कंप्यूटर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा. सॉफ्टवेयर्स, बट दिस आर वेरी रिस्की एज सच. हाँ, कोई भी एक गलती कंप्यूटर ने कर लिया, आपका सारा पैसा डूब भी सकता है. सो इट्स नॉट परफेक्ट येट. अभी तक ये परफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया होना था. इट्स नॉट परफेक्ट येट, बट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ एवोल्यूशन. ये अभी इवॉल्व हो रहा है. सो एल्गो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अगेन अ फ्यूचर. मीन्स जब हम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोडिंग को मिला के फाइनेंस में यूज करेंगे फॉर द ट्रेडिंग और कुड बी इन्वेस्टमेंट्स.
ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द ऑर्डर्स आई कैन मेक इन द मार्केट। सबसे पहले आता है मार्केट ऑर्डर। जब भी आप कभी खरीदोगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म का पूरा पेज खोलोगे, means I can't open the complete page because my account number and my details would be mentioned and because of privacy reasons I can't use that. बट वहां पे बाइंग एंड सेलिंग का ये वाला जो आइकन है ये बहुत बड़ा आता है, तो उसमें ऐसी ऑप्शंस आती हैं। मार्केट ऑर्डर व्हेन यू बाय एट द मार्केट प्राइस, तभी इसका नाम मार्केट है। जितने भी प्राइस में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 101 रुपी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाँ 101। अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूं तो 100 जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें खुद बाय हो जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली परचेज्ड। लिमिट ऑर्डर मतलब मुझे एक लिमिट सेट करनी है, मैं कंप्यूटर में ये फीड करूंगा, मीन्स इन माई प्लेटफॉर्म दैट आई वॉन्ट टू बाय रिलायंस शेयर एट 99 रुपी। अगर 99 में आया तो बाय करना, नहीं मत करना। सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑर्डर। सो माई कंप्यूटर विल कीप वेटिंग। अगर वो 99 में आएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट, एंड इट विल बी परचेज। अगर वो 99 में आया ही नहीं, वो ऊपर ही जाता रहा, तो माय प्राइस, माय ट्रेड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो होगा ही नहीं। अगेन गाइज आई टोल्ड यू इट इज ऑटोमेटेड। एल्गो ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, राइट। ना स्टॉप लॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपने आज शेयर खरीदा 100 का फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा डर लगता है यार नीचे गिर गया तो लॉस हो जाएगा, और आप यू आर बिजी इन ईटिंग अ ब्रेकफास्ट और यू आर बिजी समवेयर एल्स, तो लेकिन आपको डर भी है, आपके पैसे लग चुके हैं, सो व्हाट यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस। इसका मतलब है अगर ये 100 से 105 गया तो ठीक है, आपको प्रॉफिट, लेकिन 100 से 99 या 90 आ गया तो लॉस। तो आप पहले से ही ऑर्डर फीड करके रखोगे अपने कंप्यूटर में, डैट इन अ प्लेटफॉर्म डैट अगर ये 95 गया, 100 से नीचे गिरा 95 में, तो उसको बेच देना ऑटोमेटिकली, so that you don't get higher losses. This is called a stop loss. Means once you are hitting at the low price, it will automatically square off. It will automatically sell the share. Similarly, higher में भी आप limit order fit कर सकते हो. You can fit limit order in the higher side. Means अगर ये 105 तक पहुंच गया, 105 में खुद बेच देना है इसको. So you don't have to do anything. आपने बस एक शेयर खरीदा, उसमें स्टॉप लॉस भी लगा दो, उसमें लिमिट ऑर्डर भी लगा दो अपर साइड, दैट्स इट। अब वो जब ऊपर जाएगा तो खुद बिक जाएगा, और नीचे अगर ज्यादा गिर गया, आपको लॉसेस से डर लगता है, तो वो खुद बिक जाएगा, तो आपका लॉस भी कम होगा, एंड यू डोंट हैव टू कीप सिटिंग एंड सीइंग द स्क्रीन अगेन एंड अगेन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Similarly, good till triggered, it means similarly like limit order, the order will be automated executed जो आपने प्राइस उसमें ऑटोमेटिकली डाला हुआ, कि मुझे 100 रुपीज में नहीं खरीदना, मुझे खरीदना ही 99 में है। इट इज जस्ट लाइक लिमिट ऑर्डर। तो जैसे ही वो 99 में आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आपका शेयर खरीदा ही नहीं जाएगा। So it is, I told you, slowly and steadily the processes are becoming more automated. But stop loss is very important to learn. These are the three criterias which are very important: market loss, market order, limit order, and stop loss. It is very, very important, guys.